listening to a lot of technical and other indicators, right from Bollinger Band, RSI, moving averages, parabolic SAR. Hope you all enjoyed listening to all it. But now let us understand the extended version of technicals, that is data. Now how to use those data and how to apply on various scenarios. For that we have Mr. Nitin Murarka. Let me introduce. Mr. Nitin Murarka is a professionally chartered accountant with experience of more than 15 years in the derivatives and quantitative research. He is also a head of SMC investment strategy and derivative team. He is responsible for the formulation of derivative and alternative investment strategies. He is instrumental in developing innovative products. He is regularly sharing his experience and knowledge about the derivative markets to the traders through various news channels such as Zee Business, CNBC, Awas, and print media such as Business Standard and Economic Times. So now, without wasting any further time, let us welcome Mr. Nitin Murarka. Good evening all. Good evening. Today we all have gathered to learn something and to earn something also, right? Learning will not help until unless we earn something. So showcase you some of the data points, some of the strategies which you can deploy for next 1 month, and probably on the capital of only 50,000 you can make 5 to 10,000 per month. So if you multiply it, you can make money in that ratio only. So how I will move forward, I will take you through the flow. The topic that I have taken is how to trade using derivative data. So what is derivative data? Any idea? What kind of data I will be talking on? Open interest and volume, derivative delivery data. Then there is a FIs data. You must be seeing every day that there is a FIs are buying or FIs are selling. So these are the most important data that I will be talking on. But the important is how to use these data, because when you combine technical analysis and this data together, your productivity will increase. So I will show you how to combine these two data, or how to integrate technical analysis with the various data points. Agenda would be to trade in Nifty and Bank Nifty weekly options. How many of you trade weekly options? These days it's very popular and everybody would like to make money in weekly options. So I have a strategy which will help you making money every day. Every day? Every day, yes, every day. I will show you the strategy, because in the previous presentation what I have seen that most of the discussion was on long-term trading. But our want is to trade in short term, right? So everybody wants to make money in short term. So my focus would be to make money on intraday. How to make money in intraday in weekly options. Then we will discuss stock option strategies like buying call options or buying put options of Reliance, Hindalco, or any of the stocks you want. Trading in stocks before results. Most of us are interested in buying options before results, like say Infosys, tomorrow is the result for Infosys or TCS. So how to find stocks or how to find the direction of a stock before results. What kind of data is indicating before results. Then we will discuss some short-term delivery ideas. Short-term delivery means is buying today and selling in 3-4 days only. And all these discussions will be based on data points only, no technicals. You can combine technicals, but जो ये discussion हमारा होगा पूरा derivative data को read करके, जो volumes के data आते हैं NSE के, उसको देख के हम कैसे trade कर सकते हैं. Plus how can we formulate our portfolio? Like अभी everybody has got their portfolio. कौन सा स्टॉक हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और कौन सा स्टॉक नहीं रखना चाहिए,
We will decide on the basis of delivery data. कैसे इसको देखेंगे? That I will go through. Like which stocks to avoid for buying. Normally everybody presents which stocks to buy. You will find in the presentation that normally discuss which stock we should buy. I will discuss which stock we should avoid. So this is again very important. Expiry day data reading and trading. And on the day of expiry, Nifty is very volatile, Bank Nifty is very volatile. Normally you will find that Bank Nifty की जो options है 20 rupees becomes 100 rupees, and you have a dream to make that money. How to read data on the day of expiry? This is a very important topic we will discuss. Every Thursday. Every Thursday. So I have got one strategy where we have a risk of only 5 points and reward of 40 to 45 points. So risk reward ratio is 5 point risk and 45 point profit. So we will discuss that. Let's see how it works out. And that again simple and some profitable option strategy, and all these strategies we are practicing in the practical market. That's why I'm very confident on these strategies. Then we will have some question answer. Now moving to the next slide, I have some concepts. So if we clarify this concept, जब तक हमारे ये concepts clear नहीं होंगे, वो strategies हमें समझ में नहीं आएंगी. तो I have 7-8 points. जो concepts है we will discuss SMC, and I'm working for my proprietary desk. We have 400 traders and we work on algo platform. So what we found that out of 100 customers, 95% of the customers they buy options. Correct? Agreed? If you analyze the data of entire NSE, you will find that 92-93% of the retail public they buy options. Correct? So if retail public is buying options, somebody must be selling options, right? Because what is open interest? If you are buying options, somebody is selling options. Correct? So this is clear that retail public normally buy options. Now when you are buying options, you require less money or more money compared to selling options? Less money. Suppose you buy 10 lots of options. The price is 50 rupees. What is the capital requirement? 500. You buy 10 lots. That means 75 into 10 lots into 50 is the current market price. So you might require 35-50,000 only. Correct? But you sell 10 lots. How much money you require? At least 6-7 lakhs rupees. Correct? Now, the person who is buying money, he is richer, or person who is selling money, he has more money. That means the person who is selling, he is stronger hand. Now, what I mean to say is, suppose किसी भी option की strike पे 10 लाख शेयर का open interest addition. Suppose 11,010. What is the market? 11,100. If you see a open interest addition of 10 lakh shares at 11,100. What you will assume? Public, normally they are buying options, and stronger hand is selling options. Who will be the winner? Stronger hand is the winner, but the problem is we don't have money, so we can always buy options. तो हमें क्या करना है? जो stronger hand देख रहा है, कर रहे हैं, उसको देख के public, what public is doing, we have to do reverse. Suppose public is buying call options, then we will buy put options. ठीक है? So now I will discuss these open interest with examples. Now the funda is clear. What is options open interest? Correct? And again the next funda is public normally buy options, retail public, the small public, and FIs and big proprietary where the funds are really high, they sell options. Correct? The next is 33% probability. When you buy options, suppose market is trading at 11,100. The call option price is 50 rupees. Right? So you buy one lot of call options. When you will make money? When market goes up, correct, you will make money. When market goes down, you will lose money. When market stays at same level, what you will do? Lose money. So when you buy options, you have only winning probability of how much? 33%. Because as soon as you are buying, you will only make money when market goes up. Correct? So you are only buying that product
where you have a winning probability of only 33% from beginning. Correct? That means जब भी आप किसी ऑप्शंस को खरीद रहे हो तो उसी समय से ये आप मान के चलो कि मैं उस चीज को खरीद रहा हूँ जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%. एग्रीड? प्लस 50 रुपीज ऊपर बढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट आएगा. करेक्ट? तो उसमें टाइम वैल्यू का भी रिस्क है, तो स्टिल यू लूज फर्दर 10%. दैट मीन्स 75% की प्रोबेबिलिटी तो आपको ऑप्शन बाय करते ही गई. You have only 25% winning probability. So that means option buying is a very risky game. Correct? Now how we will make money? Because this is a risky and some, but कई लोग इसमें बहुत पैसे बना रहे हैं. Correct? You also want to make money. So how we can improve this 25% to 60%? What is put call ratio? Any idea? The outstanding OI of put versus the outstanding OI of call. Total put open interest divided by total call open interest is a put call ratio. What is open interest concentration? Maximum accumulation and the strike price. Suppose sir market is trading at 11,100 and there is a maximum open interest at 11,200. What is your interpretation? आप क्या बोलोगे? Resistance level. वहां पे सबसे ज्यादा पब्लिक ने कॉल खरीदा हुआ है, यानी stronger hands have sold calls of 11,200. So what is the caution for retail player? We should not buy call option of 11,200. That means जहाँ पे सबसे ज्यादा OI का concentration है, that is the difficult resistance area, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे का involvement है. There is an involvement of money there. Correct? So open interest concentration is clear. But that can be at various calls. Yes, that can be at various calls, but we have to look at the maximum open interest concentration. Maximum. I will go to the examples now. So these are the basic concepts. What is delivery data? What do you mean by delivery? After trading whole day, the person who is taking stock home, Positions. That is called delivery. Suppose there is a volume of 10 lakh shares, and by end of the day, when you get a data from NSE, the delivery percentage is 20%. So that means 2 lakh share has been taken to delivery, taken to home. So that means what is the actual capital deployed is 20% capital is deployed on Reliance. Correct? so you get concept of replacement, right? That I will discuss with the example. So because if I discuss here, you will not get this point. Correct? Number. I short next. Option price next. Change in open interest. Okay. So you sell the option which is next to the highest open interest. So what is the winning ratio? 100%. So probably you can tell it 70-80% of the time you are making money. Correct? And with the help of this data, we can create various kind of spreads also. Like say, as soon as we log in the option chain, I will discuss some of the strategies. Like we can create bull call spreads, we can create butterflies, we can create bear put spreads, we can create ratio spreads. So which strikes to use? Basically the problem is, we know in a bullish market we can create bull call spread, but the problem is which strike to buy and which strike to sell. भाई हमें ये पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और हमें स्प्रेड्स करना है, बट द प्रॉब्लम इज विच स्ट्राइक टू बाय एंड विच स्ट्राइक टू सेल. तो वो क्या, व्हेन यू लुक एट ऑप्शन चेन डेटा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन एंड वी कैन बाय दिस स्ट्राइक एंड वी कैन सेल दिस स्ट्राइक. हो गया. So option chain में what you get? You get strike price. This is a call section, this is a put section. Correct? So you get strike price, you get current market price, then you get open interest, and you get change in open interest. Correct? This is a call side data and this is a put side data. So the most important column is change in open interest. Change in open interest. This is a call side and this is a put side. Now, as we discussed, जो public है हमारी retail public, they normally buy options. Correct? This is call and this is put. When you total all the open interest of all the strikes, what is the total figure? Call side? 19 lakh 19,000. What is the put side?
पब्लिक किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है? कॉल में कम इंटरेस्टेड है, तो हमें क्या बाय करना है? कॉल बाय करना है, करेक्ट? नाउ दिस इज अ ऑप्शन चेन डेटा लाइव मार्केट में। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, और इसमें देयर इज वन स्ट्रेटजी थ्रू विच यू कैन मेक एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो। अभी आप यहां से जाने के बाद क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं। When you log in this, सुबह जब मार्केट 9:15 बजे खुलेगी तो ये डिफरेंस कितना होगा उस समय ओपनिंग में? अप्रोक्सीमेटली फ्लैट। से जब मार्केट 9:15 बजे खुली तो दिस वैल्यू इज कॉल वैल्यू एंड पुट वैल्यू इज 1 लाख एंड 1 लाख, करेक्ट? 1 लाख एंड 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन। नाउ एट 9:30 the call value becomes say 2 lakh and put value is 1 lakh at 9:30। इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक कॉल ज्यादा बाय कर रही है, पुट में कम इंटरेस्टेड है, तो हमें किधर दिमाग लगाना है? पुट में। फिर आपने देखा 9:45 पे दिस बिकम्स 5 lakh, this becomes 2 lakh। Now the strategy is, what is the difference? This is 0, this is 1, ठीक है? This is 3, correct? Now आपने देखा कि by 10 o'clock this value becomes 7 and this value is 2. What is the difference? 5. So इससे क्या पता चला? पब्लिक कॉल साइड घुस रही है। बेसिकली कॉन्सेप्ट इज बिगर प्लेयर आर सेलिंग कॉल्स। मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूं कि पब्लिक कॉल साइड घुस रही है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? द स्ट्रेटजी इज व्हेन द डिफरेंस इज 5 लाख यू बाय 1 lot of कॉल ऑप्शन, सॉरी व्हेन द डिफरेंस इज बाय 1 lot of पुट ऑप्शंस। सो हियर यू बॉट 75 शेयर्स। नाउ अगर ये वैल्यू सपोज करो वहीं से रिवर्स हो गया, ये वैल्यू घट के वापस बराबर आ गया, यू एग्जिट दैट 1 lot। सपोज क्या हुआ, मार्केट 11 बजे यू फाउंड दैट this value went up to 20 lakhs, no, you value went up to say 15 lakh, correct? And this value went up to 5 lakh. What is the difference? 10 lakh. So जब 5 लाख का डिफरेंस होगा you have to add 1 lot, correct? Now इस लेवल पे आपको 1 lot और लेना है, put options, because at the money, जो भी स्ट्राइक पे आप कंफर्टेबल हो। अब मैं डिस्कस करूंगा वो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आप जो भी स्ट्राइक पे कंफर्टेबल हो वही लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर जाना है। कोई भी स्ट्राइक लोगे, इंट्राडे है तो थीटा डी के तो लिमिटेड ही होगा ना इंट्राडे में, एक्सेप्ट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, अदरवाइज तो थीटा डी के इंट्राडे में लिमिटेड होगा। जो स्ट्राइक पे आपको इच्छा करे वो स्ट्राइक आपको लेना है। बट द कॉन्सेप्ट इज कि अगर ये डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो यू हैव टू कीप एडिंग ऑन योर पोजीशन। सपोज करो यहां से वापस रिवर्स हो गया, ठीक है, तो वापस ये डिफरेंस अगर 5 का आ गया तो जो मैंने 1 lot ऊपर लिया था वो निकाल दूंगा, ठीक है? फिर डिफरेंस वापस 0 आ गया तो 1 lot और निकाल दूंगा, तो मेरा लॉस ज्यादा नहीं होगा। इसमें नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी हैव अ 2 स्टॉप लॉस। वन इज 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो हमने ऑप्शंस बाय किया है। सपोज आप एट द मनी ले रहे हो तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस हम फिक्स रखते हैं, आइदर 20 रुपीज और ये डेटा चेंज हो जाए, विचएवर इज अर्लियर। 20 रुपीज का मतलब हो गया कि 40-50 पॉइंट निफ्टी में, ठीक है? वो नॉर्मली क्या होगा, अगर ऐसा डेटा होगा तो उतना रिवर्स नहीं मारता मार्केट, क्योंकि ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि अगर ये डेटा ऑपरेटर अगर सेलिंग कॉल तो वो अपने अगेंस्ट में इतना ज्यादा नहीं जाएगा पोजीशंस। अब यहां पे आप डेटा में आओ, जब ये इस तरीके से चला होगा तो ये दिस इज 19 लाख एंड दिस इज 43 लाख। व्हाट इज द डिफरेंस? अप्रोक्सीमेटली 20 लाख। तो 4 lot में प्रॉफिट बनता मेरा फ्राइडे को, ठीक है? अब ये डेटा तो ऐसा तो नहीं 3:30 बजे हो गया होगा। अगर आप इस डेटा को, ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कैसे कैसे मार्केट मूव कर रहा है, एंड यू कैन, सिंपल है कि आप पोजीशन यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग और ऑटोमेटेड आप डिक्रीज कर सकते हो। जैसे सर ने पूछा था कि फियर फैक्टर को कम करने का क्या तरीका है, करेक्ट? फियर फैक्टर को कम करने का सिंपल तरीका है डिसिप्लिन एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ये क्या है? दिस इज अ रूल, only deploy 20-25,000 capital on this strategy, because 1 lot को खरीदने में कितना पैसा लगेगा? Because average premium is 50 rupees at the money, 3,500-4,000। तो इस मैकेनिज्म पे आप
1 महीने प्रैक्टिस करके देखो, यू विल मेक सम मनी, बिकॉज अल्टीमेटली आपका क्या रिस्क इज डिफाइंड, 20 पॉइंट्स का आप रिस्क ले रहे हो, प्लस ऑलवेज यू आर मेकिंग पोजिशन विद द बिगर प्लेयर, जो रिटेल के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? क्या कैसे? अब कोई भी आदमी एक मेरे को समझ, 5 लाख इज अ नेट डिफरेंस क्वांटिटी, इट इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर। No, this is change in OI. So ये जो आपने लिखा है, This is change in OI because we will look at change in OI, not in total OI, because we are intraday trader and we have to make money after 10:30. And again, we will create position normally after 10:15 or 10:30. That's why I said in the beginning, always trade after 10:30 because आप ये data बनने दो और difference को closely watch करो, then you will get the nerves of the market. बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो बनने के बाद दिखाता है, ठीक है, चार्ट कैंडल बन जाएगा, देन यू विल कम टू नो कि ऐसा हो रहा है। बट ये जो है, ये आपको पहले से बता रहा है कि पैसा किधर लग रहा है। अब आप इसको दूसरे पिक्चर से देखो, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो पब्लिक का पैसा किधर लग रहा है, ऑपरेटर का पैसा किधर लग रहा है, पब्लिक का पैसा किधर लग रहा है, पुट की तरफ। यानी पब्लिक को फायदा कब होगा, जब बाजार गिरेगी, ठीक है, ऑपरेटर को फायदा कब होगा, जब बाजार बढ़ेगी। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो सर, मेरा ऑब्जेक्टिव आपके लिए प्रॉफिटेबल बनाना है, नॉट टू गिव ट्रेनिंग, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर, आई एम अ ट्रेडर। फिर से बोल दीजिए सर। ठीक है, तो नहीं, नॉर्मली एजम्पशन है कि पब्लिक पुट ऑप्शन खरीदती है, ठीक है। अगर ऑप्शन पब्लिक खरीद रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है ऑप्शन बेचने के लिए, नॉर्मली ऑप्शन बेचने के लिए वी डोंट हैव मार्जिन। अगर मैं आपको बोलूं कि 50 लॉट ऑप्शन बेच दो, यू नॉट बी एबल टू सेल, ठीक है, 90% पब्लिक विल नॉट बी एबल टू सेल। बट आपको मैं बोलूं आप 100 लॉट ले लो, पक्का मार्केट बढ़ने वाला है, आप कल ही 100 लॉट ले लो, ठीक है। द बेसिक एजम्पशन इज, ये कहीं बुक में रिटर्न नहीं है, बेसिक एजम्पशन इज 90% ऑफ द पब्लिक दे बाय ऑप्शंस। तो फंड का डिप्लॉयमेंट किधर हो रहा है, वी आर ट्रैकिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। अब आप देखो पुट साइड में देयर इज अ मैक्सिमम इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर ऐड हो रहा है, ठीक है, यस। No, that is from morning. मॉर्निंग, ठीक है। अब चेंज इन OI। अब मैं ये बोलना चाह रहा हु सर कि पब्लिक का मैक्सिमम पैसा कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक बाय कर रही है, ठीक है, पब्लिक इज बाइंग ऑप्शंस। तो हु इज सेलिंग ऑप्शंस, स्ट्रॉन्गर हैंड आर सेलिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे गिरेगा तो फायदा किसको होगा, पब्लिक को होगा, ठीक है। और अगर नहीं गिरेगा ऊपर जाएगा तो फायदा किसको होगा, ऑपरेटर को। तो नॉर्मली कौन जीतता है, ऑपरेटर या पब्लिक, ठीक है। तो द बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहां पे पैसा लग रहा है और आप उसको उल्टे तरीके से देखो कि ऑपरेटर का पैसा किधर लग रहा है और उसके बेसिस पे आप काम करो। वी हैव बीन ट्रेडिंग दिस मॉडल फॉर लास्ट 3-4 years एंड हम एल्गो प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं एंड वी हैव बीन मेकिंग डिसेंट मनी इन दिस स्ट्रेटजी। यस सर। Nitin, this whatever you were telling, Yes, sir. I am passionately following this why for last few years. जी सर। And your theory was absolutely correct till March this year. After March, the election volatility started and this till now it is continuing. And this theory is failing every day Now again, since March. I will explain, If you sir. have observed it, if you are agree with me, Yes, sir. every day there are 2-3 movement upward, downward. Sir, I agree with you. There is a variation in Y formation last few months. Drastically. If you know these things, Correct. kindly give your comments. Now there are, when the volatility is more than 16%, when the VIX volatility is more than 16%, the market gets volatile, correct? So when the markets are volatile, this data has got less relevancy. But when the volatility will go down below 16 or 15, this data will have lot of importance and it will have an accuracy of more than 80%. Now, हमेशा लाइफ में तो सर वॉलेटिलिटी 16-17 के ऊपर तो नहीं रहेगी, ठीक है। We made lot of money in 2018 and by mid of 2019 also. Going forward जो volatility अभी है मार्केट की, that is VIX is approximately 16%. अगर VIX goes down below 15%, this data will again start giving very good signal. But again, for Nifty and Bank Nifty both, I will again discuss. Now sir, इसमें क्या है? Coming to your point, buying our options at one go. We bought one lot here,
Then we got some confidence that okay, this is happening. Then we are adding next lot. Then again the data is moving in my direction. Then again I am adding third lot. Now the important is how to book profits here. सर ये जो वन लॉट पहले लेना है ये एटीएम वाले पे ही देख के हमने एटीएम पे लेते हैं सर. इसमें हम क्या करते हैं ना, जो 20-20 रुपए हमें मिलते जाते हैं हम प्रॉफिट बुक करते जाते हैं. सपोज करो मैंने 11-100 की कॉल ली 50 रुपए में, ठीक है, ये 20 रुपए बढ़ गई, आई बुक प्रॉफिट. दूसरा लॉट मैंने लिया वो 20 रुपए बढ़ गया, आई बुक प्रॉफिट. ऐसे क्या होगा कि सपोज ऊपर जाके अगर नीचे आएगा तो एटलीस्ट आपका 2-3 लॉट का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और नीचे अगर आया तो 20-20 रुपीज का वी कीप अ स्टॉप लॉस. यू आर गेटिंग माई लॉजिक. हम जिस भाव पे बाई कर रहे हैं नीचे वाला उससे 20 रुपीज का स्टॉप लॉस है. ऊपर गया तो वी बुक अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज. सो 1:1 इज द हिट रेशियो, स्ट्राइक रिस्क रिवार्ड रेशियो. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, वी आर नॉट बाइंग द एंटायर क्वांटिटी एट वन गो. नंबर 1, वी आर एवरेजिंग इट विथ द सपोर्ट ऑफ डेटा. ठीक है, तो ऐसा जो आप बोल रहे हो वो महीने में अभी रिसेंट में 4-5 बार ऐसा हो रहा है महीने में. आउट ऑफ से 22 almost daily. Almost daily since Friday. No, like sir, on Friday we made very good money on this model. You just practice it for next 15-20 days. Maybe this data might have got some slight less accuracy in these days. Approximately अभी भी इसका 60% plus accuracy आ रही है. But sometimes the accuracy goes to even 80% also. So is it better to knock out all the money strikes and only concentrate on next 5 to 6 strikes? No, it is always better to trade at the money because That's true, but for calculation of change in OI, is it not better to not take into account the out of money strikes and consider the next 5 or 6 strikes? sir, when it is Friday, you should consider all the strikes. But when it is Thursday, like on the day of expiry, you should only consider near the strikes because out of money strikes will not have value. That is not relevant. But when it is Friday or when it is Monday, you should consider all the strikes. Correct? So this yeah. जी हाँ, अब आप देखो ना सर, ये 20 लाख का डिफरेंस आ गया. हर दिन आएगा. कभी कभी क्या होगा, ये डिफरेंस आएगा ही नहीं, ये बराबर रहेगा तो उस दिन ऑप्शन खरीदने का दिन ही नहीं है. वो क्या करेगा, टाइम वैल्यू को खत्म कर देगा. हाँ, स्टार्ट वो 20-25 लाख से ही होगा. बट कभी कभी क्या होगा, आप 10:30 बजे तक भी देखोगे ना तो ये वैल्यू 9 लाख है, ये वैल्यू 10 लाख है, डिफरेंस नहीं आया. तो इसका मतलब ऑप्शन में घुसना नहीं है, वो वैल्यू खा जाएगा मेरी वो. हाँ नहीं, वॉल्यूम निफ्टी का ज्यादा है, बैंक निफ्टी वोलेटाइल बहुत है. मैं सजेस्ट करूंगा बैंक निफ्टी आप मत करो. बैंक निफ्टी को संभालना बहुत मुश्किल है. बैंक निफ्टी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द स्टॉप लॉस. आप अगर इसमें ही अगर थोड़ा सा एक्सपर्टीज डेवलप कर लोगे, बिकॉज ये क्या, दिस इज एन आर्ट, ये साइंस नहीं है. ये क्या आपकी पकड़ के, वेन यू प्रैक्टिस इट फॉर 1-2 months आपको अपने आप अंदर से फील होने लगेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है. अब इसके अंदर 2-3 चीजें मैं भी डिस्कस करूंगा जो आपको क्या देखना है. बट ये आप प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मार्केट विदाउट नोइंग एनी टेक्निकल एनालिसिस. अगर आपको टेक्निकल आता है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं भी आता है, वेरी सिंपल वे में आप इससे थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हो. The high value people, they are selling. My basic assumption is retail public, they only buy options. They only buy options. They only buy options. But you have chosen call, the put. No, sir, I have not chosen put here. What I am finding in the data that on the day of Friday, maximum retail public were buying put options. So that's why I have taken call options. I am playing contra to the retail player. Okay, so these are you are telling buying the call options. Public is buying put options, so I will buy call options. selling calls. Sir, if the public is buying put option, then I will buy call options. What is Okay. Correct? So here the this chart shows that we need to go for call option. Yes, sir. This chart is showing. This should be the difference. Suppose the difference is say 19 lakh and only 19 lakh, then that is not advisable to buy any options, neither call or put, because the difference is not relevant. Market may remain sideways and you may lose the time value premium. But when the difference is there, that means somebody is more active on this side or this side. So you get a clear direction of the market. Plus you have a technical tools. When you get a confirmation on your chart, like sir, on your chart you are getting a breakout. Suppose on your hourly chart you are getting a breakout. Plus you are getting support of this data.
तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा इससे सर, राइट? सो यू कैन कंबाइन योर टेक्निकल एनालिसिस विद दिस डेटा, दिस गिव्स यू डबल कॉन्फिडेंस एंड डबल कंफर्मेशन। प्लस चार्ट्स में आपने देखा कि हाई ब्रेक किया, अगेन योर कॉल ऑप्शन मूव्ड अप बाय 10 पॉइंट्स, आपको और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अगेन यू फाइंड अ डिफरेंस इंक्रीज टू 15 लाख, तो आपको जब आप एक्स्ट्रा कॉल खरीदोगे या पुट खरीदोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज आप डेटा के अंदर देख रहे हो। अभी हमें लॉस क्यों होता है? बिकॉज वी हैव लेस कॉन्फिडेंस। अभी हम ट्रेड में इंटर करते हैं तो इंटर करते ही हमें डर होता है कि पता नहीं ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, बिकॉज वी हैव लेस कॉन्फिडेंस। व्हेन यू लुक एट दिस डेटा यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, तो यू कैन इजीली मैनेज योर ट्रेड्स। अभी प्रॉफिट, बट इसके ऊपर आप डिसिप्लिन से कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अच्छी यहाँ पे पोजीशन और बढ़ रहा है। सपोज आपने देखा कि 12 बज गए, द डिफरेंस इंक्रीज टू 20 lakhs, इसका मतलब समझो कि क्लोजिंग में मार्केट कम से कम 100 पॉइंट उड़ा देगी। नॉर्मली जब ये डिफरेंस, सपोज मार्केट इज नॉट मूविंग अप, कभी कभी आप देखना फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट सुबह 10 बजे से लेके 1:45 तक 10 पॉइंट की रेंज में घूमता था, ठीक है, 10 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। अचानक से क्या हुआ, मार्केट बहुत तेजी से भागा। जब ये डिफरेंस आप देखोगे 2 बजे तक ये डिफरेंस करीब 6-7 लाख था कि पॉजिटिव साइड में, मतलब कि इस साइड डिफरेंस बना हुआ था, करेक्ट। अचानक से ये डिफरेंस क्या हुआ, तुरंत 50 लाख शूट अप कर गया और मार्केट मूव करने लगी। आपके चार्ट में आ गया कि मार्केट इज ब्रेकिंग अप। तो अगर ऐसा हुआ और वैल्यू आपको दिख रही है तो आप फटाक से कॉल को हिट करोगे या नहीं करोगे? करेक्ट। तो ये डेटा के बेसिस पे यू कैन प्लान योर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन स्ट्रेटजीज। फ्राइडे क्या हुआ था? मॉर्निंग 10:30 सर 10:30 से सुबह के बीच में डिफरेंस बहुत माइनर था, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे ही चल रहा था। डिफरेंस 1 बजे के बाद बढ़ना चालू हुआ, ठीक है, मार्केट में मूव आई 1:40 के बाद, बट डिफरेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हमें ये इससे फील आने लग गई कि पब्लिक ऑपरेटर का पैसा पुट साइड में लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेटर जब तक पोजीशन नहीं बनाएगा बिगर प्लेयर तब तक मार्केट में मूव नहीं आएगा, तो वो बिना पोजीशन के मूव नहीं करेंगे। चार्ट में आपको मूव करने के बाद दिखेगा, बट यहाँ पे हमें क्या था, 11,000 की स्ट्राइक्स में ओपन बिल्डअप होने लगा था, 11,000 में बिल्डअप होने लगा और 11,000 की जो स्ट्राइक थी कॉल्स में, उसमें पोजीशन कम होने लगी। इसका मतलब राइटर इज गेटिंग आउट ऑफ कॉल एंड एंटरिंग इनटू पुट, सो दैट इज अ सिग्नल दैट मार्केट विल मूव अप। सर ये तो क्लोजिंग डिफरेंस है फ्राइडे का, ये इंट्राडे क्लोजिंग डिफरेंस, इंट्राडे जो शाम को क्लोज हुआ ना, 2:30 बजे के आसपास करीब 10-12 लाख का डिफरेंस था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, बट उससे क्या वी वेंट टू, हम कॉल की तरफ मूव कर गए। यू कैन लुक एट आफ्टर एवरी 15 मिनट, जब आपको इसका आदत हो जाएगी इस डेटा की, तो आप हर 5 मिनट में देखने लग जाओगे। नहीं, जब भी डिफरेंस आपका 5 से 10 हो जाए, 10 से 15 हो जाए, तब आप कर सकते हैं। नहीं सर, आपकी डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो। शुरू में मैं ये बोलता हूँ नहीं, एक लॉट 5 लाख 5 के डिफरेंस पे 1 लॉट नहीं, एक ऐड करना, एक ऐड करना। सर 5 पे 1 10 हो गया तो 2 होने चाहिए आपके पास, 15 हो गया तो 3 होना चाहिए। आप इस मल्टीप्लाई में आप कर सकते हो। नहीं तो अच्छा, हाँ, नहीं सर, वो क्या है, अगर आप रेगुलर देखते रहोगे तो आपके सामने चेंज होगा, क्योंकि डेटा हर 3 मिनट में अपडेट हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखेगा नहीं और चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आपके सामने होगा। व्हाट यू डू इज फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यू प्रैक्टिस विद अ मिनिमम लॉट साइज, इट कुड बी 1 लाख 2 लॉट। 1 मंथ के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, देन यू इंक्रीज द लॉट साइज टू 5 टाइम्स 10 टाइम्स, जैसे आप कंफर्टेबल। फॉर एवरीडे और फ्राइडे एंड मंडे। So this is normally intraday. You Thursday को we have a different strategy. Thursday को अलग डेटा काम करता है, बट फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 4 दिन ये डेटा काम करेंगे सर। सर मैं यस विल बी यस we follow 2 kind of stop loss. One is price stop loss which is 20 point, and second is आपने डिफरेंस पे 5 लाख के डिफरेंस पे and difference goes down to 0 again. अच्छा 0 आएगा तब, हाँ जब 0 आएगा तब, ठीक है, so that means the position is as reverse. No कोई फायदा नहीं, 0 आएगा तब when the difference get equals or it gets negative.
नहीं, ये नेक्स्ट डे नहीं, अभी नाउ वी आर डिस्कसिंग इंट्राडे ओनली। उल्टा होगा तो उल्टा काम करेंगे, हम पुट बाय करेंगे, जैसा डेटा बनाएगा हम वैसा करेंगे। क्योंकि सर मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग कितने तक रुक सकते हो? अच्छा ठीक है, तो मुझे आप टाइम दे दो, फिर वी विल डिस्कस 1 to 1, है ना? हाँ ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखने की चीज है, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन किस लेवल पे आ रहा है? 11,100 कॉल ऑप्शन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? 11,200 कॉल ऑप्शन। अब सपोज मुझे बुल कॉल स्प्रेड बनानी है। व्हाट इज बुल कॉल स्प्रेड? बाइंग वन कॉल ऑप्शन एंड सेलिंग नेक्स्ट स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। इस डेटा को देख के मैं बुल कॉल स्प्रेड कौन सा बनाऊंगा? सिंपल है, समझ में आ गया? वाई 11,100 लेके 11,200 बेचा, बताओ सर आप। अगर मुझे तेजी खेलनी और एट द मनी यही लेवल है तो मैं ये लेकर के यही बेचूंगा, ठीक है। नॉर्मली गलती लोग क्या करते हैं, वो 200 लेके 300 बेच देते हैं, ठीक है। तो ये क्या, टाइम वैल्यू डिके का रिस्क सबसे ज्यादा 200 में है, तो आपको स्प्रेड में पैसा नहीं मिलता। सो ऑलवेज ट्राई टू बाय स्लाइटली बिलो द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन। अभी सपोज एट द मनी पे है, बट अगर नॉर्मली क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट जो कंसंट्रेशन होता है वो एट द मनी से दूर होता है, तो ऑलवेज जो एडवाइजेबल है आप एट द मनी खरीदो, और जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो वाला बेचो, तो दैट इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड। उसमें आपको सबसे बेस्ट सेफ्टी लेवल मिलती है। सेम सपोज मुझे अगर पुट कॉल स्प्रेड्स करना है, सपोज अगर मुझे पुट्स में प्ले करना है, मुझे कौन सी स्ट्राइक की पुट नहीं खरीदनी चाहिए, आप डेटा देख के, और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए? पक्का नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? ये 26 रुपीज ये जीरो हो जाएगा इस एक्सपायरी में। देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल बिकम जीरो। क्यों? ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन बेच के बैठा हुआ है? अच्छा, 27 लाख शेयर बेचने में कितना मार्जिन चाहिएगा मेरे को? है? मुझे लगता है कम से कम 600-700 करोड़ रुपए चाहिएगा अप्रोक्सीमेटली। और इसको खरीदने में 26 रुपए में खरीदूंगा तो कितना मार्जिन चाहिएगा? 27 लाख इंटू 26 तो 5 करोड़ 700 करोड़। किसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है? राइटर का। तो वो क्या गिरने देगा 11,000 के नीचे? भाई गिरेगा तो रिलायंस खरीद लेगा, गिरेगा तो SBI खरीद लेगा, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट इज वी हैव टू लुक एट कि कहां पे ऑपरेटर का पैसा डिप्लॉयड है। अगर वो डिप्लॉयड है उस लेवल पे, तो उस लेवल के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अब आप स्ट्रेटजी क्या बना सकते हो? अगर आपको मंदी खेलना है, आप यू बाय दिस एंड यू सेल ट्वाइस ऑफ 10,900। सपोज आपने ये खरीद लिया, आपको यू हैव अ बेयरिश माइंड, आपको मंदी खेलना है, डेटा है फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे मंदी खेलना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? सेफ स्ट्रेटजी। वी बाय 11,000 पुट ऑप्शन, द प्राइस इज 26। नाउ 26 रुपीज का मेरा रिस्क है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल सेल 10,900 पुट ऑप्शन डबल। तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 22 रुपया। और 26 मैंने लिया तो मेरा रिस्क कितना है? 4 रुपए का। मार्केट अगर नीचे आई और 11,000 का लेवल तोड़ेगी, देन ऑल्सो मेरे को लॉस तो नहीं है ना, मेरे पास वो खड़ा है, ठीक है। 10,900 तोड़ेगी तो रिस्क है, 10,900 पे प्रॉफिट है, आई विल गेट 100 पॉइंट्स। अगर 10,900 पे एक्सपायरी होती है तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? 100 पॉइंट्स। रिस्क 4 पॉइंट और प्रॉफिट इज 100 पॉइंट। तो ये देख करके आप एक्सपायरी वाले दिन प्ले कर सकते हो। ये डेटा को देख के थर्सडे को हमें प्ले करना है 1:2, जो मैं बात कर रहा था कि सर हम 4 पॉइंट का रिस्क लेंगे और 40-45 पॉइंट का प्रॉफिट बनाएंगे। वो मैं उस स्ट्रेटजी पे आ रहा हूं, ठीक है। ऑन द डे ऑफ थर्सडे आपको ये देखना है कि 50 पॉइंट का लेवल में कहां पे मार्केट का पोजीशनिंग बन रहा है। करेक्ट। सो यू आर बाइंग एट 11,100। अभी हम 11,100 पे हैं, ठीक है। आपका रिस्क 10,900 तक तो कोई रिस्क नहीं है, प्लस
100 पॉइंट और गिरता है तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो यू आर सेफ टिल 10,000 इज बिलो 10,800। तो आपके पास करंट लेवल से 300 पॉइंट का सेफ्टी है, 4 पॉइंट का रिस्क लेके, ठीक है। द रिस्क इज की रातों रात सर्किट, देन देयर इज अ रिस्क, अदरवाइज थ्योरेटिकली देयर इज नो, प्रैक्टिकली देयर इज नो रिस्क। एक्सपायरी वाली डेट पर, हाँ, ये मैं बात कर रहा हूं, हमें ओवरनाइट ट्रेड नहीं करना है इस पे। एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को आप पहले डेटा देखो क्या बन रहा है। थर्सडे को आपने डेटा देख लिया कि पब्लिक पुट में बैठी है और पब्लिक पुट में बैठ गई, यानी ऑपरेटर का पैसा पुट साइड लग गया। अब आप ये देखो कॉल्स में कहां पे कंसंट्रेशन बन रहा है। सपोज करो आज एक्सपायरी होती, सबसे ज्यादा 11,100 पे ओपन इंटरेस्ट बन गया और 11,050 का लेवल चल रहा है, करेक्ट। मार्केट का व्यू पॉजिटिव, मैं क्या करता, 11,050 की कॉल लेके 11,100 की डबल बेच देता ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। मेरी कॉस्ट कितनी आती, 3 से 4 रुपए, करेक्ट। मेरी सेफ्टी कहां तक है, नहीं, मेरी सेफ्टी है मैं 11,050 पे हूं, मैं ये कॉल ले ली, ये डबल बेच ली, मेरी सेफ्टी 11,150 पे, यानी 100 पॉइंट ऊपर तक मैं सेफ हूं। अगर नीचे चला गया तो माई रिस्क इज ओनली 4 पॉइंट्स। अगर मार्केट आकर के एक्सपायर हो गया 11,100 पे, तो कितना प्रॉफिट बनेगा, 45 पॉइंट्स, ठीक है। अगर मार्केट यहां से 10 पॉइंट भी ऊपर बंद हो गया इस लेवल से, तो भी 10 रुपए मेरे बनेंगे, 20 पॉइंट हो गया तो 20 रुपए बनेंगे। और एक्सपायरी वाला दिन 100 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो आपके आंख के सामने जाएगा, योर स्टॉप लॉस विल बी 11,150। आपका रिस्क कहां से चालू होता है, 11,150। आपने 11,050 पे कॉल खरीदा, 150 हो गया तो आपका रिस्क चालू होता है, वहां पे आप पोजीशन से काट के निकल जाए। So why don't you just say 10,900 puts in this case? No, you are saying rather than buying 11,50 and selling to sell 11,000 call option. we just sell 11,000 puts. No, what we will do is we will buy 11,050 call, one lot, correct. We will sell 11,100 call, 2 lots, correct. When you are buying this, the premium would be approximately 30 rupees on the day of expiry at the money, correct. When you are selling this, the premium would be approximately 12 to 13 rupees on the day of expiry. So this will be between 9:15 to 10:30. No. You trade after 10:30 only. After 10:30 तब फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि ऊपर का है, फिर आपको ये स्ट्रेटजी पे आना, ठीक है। Why can't you just sell the 11,000 put? Sir, we can sell 11,000 put, but that requires margin. Other than that, it's a better strategy. When you are selling 11,000 put, you will only make 10 rupees on the day of expiry, because normally 50 point out of money will have 10 rupees, plus you have unlimited risk on the put side. But when you are playing this ratio, you have a risk of 4 point and reward of 45 point. Yeah. But net profit will be less, because when you are selling this at 10 rupees and when you are buying the lower strike, you will be paying 2-3 rupees, so net profit will be only 6-7 rupees. So when we are trading call option, the risk reward ratio is very good here, because with a risk of 5 point we are playing for 45 points, correct. तो कॉन्सेप्ट इज, सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद वी विल बाय एट द मनी एंड वी विल सेल ट्वाइस, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा ओआई कंसंट्रेशन। ये स्ट्रेटजी हम करीब फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स वी हैव बीन ट्रेडिंग, एंड वीक में नॉर्मली 1 से 2 बार हमें लॉस होता है। सपोज आउट ऑफ 4 वीक्स यू लूज इन 2 वीक्स, तो आपका कितना लॉस हुआ, 4-4 रुपए का, ठीक है। एंड 8 रुपए का यू मेक मनी इन 2 वीक्स, ठीक है। अगर आपको 20-20 रुपए में मिले तो यू मेक 40 पॉइंट्स एंड यू लूज 8 पॉइंट्स, सो नेट यू आर प्रॉफिटेबल। वर्स्ट केस भी होगा तो यू विल लूज ओनली 20 पॉइंट्स इन अ मंथ। भाई इतना तो खराब नहीं होगा ना कि हर वीक ही आपका लॉस हो जाए इसमें। 11,150 will be the stop loss
यानी 100 पॉइंट का मूव हुआ तो हमें करीब करीब लॉस इसमें 6-7 पॉइंट का आ जाएगा। 1101 का जो लॉट है ना, सर उसका रेट उसमें बहुत ज्यादा हुआ, सर ज्यादा लॉस है। नहीं, एक्सपायरी वाले दिन जब आपने यहाँ पे खरीदा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने 10:30 बजे खरीदा और ये 11:30 बजे अगर 100 पॉइंट पड़ गया तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। बट अगर ये चीज 3 बजे हुआ तो लॉस आपको नहीं, प्रॉफिट होगा। तो डिपेंड करता है मोमेंटम कितना है। बट नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर 100 पॉइंट तुरंत लिया और तुरंत बढ़ गया, तो अगर वैसा हुआ तो लॉस आपको हो सकता है 15-20 पॉइंट का हो जाए। बट ऐसा सिचुएशन साल में एक बार होगा। साल में कितना बार आएगा? 4-5 बार आ सकता है, तो वो हमें मैनेज करना पड़ता है पोजीशन। करेक्ट, ठीक है, क्लियर। वाइडर स्प्रेड्स इंट्राडे में आपको प्रीमियम्स रिसीव नहीं होंगे। इफ यू क्रिएट अ वाइडर स्प्रेड, you will not be able to reduce your risk. बेसिकली मनी तो बन जाएगा, डायरेक्शन सही होगा तो, बट जो प्रीमियम रिसीट ऑफ प्रीमियम विल बी वेरी लेस, so will not be able to make money. The risk reward ratio will no increase. कॉल एंड सेल 11,100 कॉल, 50 पॉइंट का स्प्रेड, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन 100 पॉइंट का एवरेज मूवमेंट होता है। डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी पे। आगे अगर विक्स ज्यादा है, सपोज करो विक्स इज मोर देन 20, तो उस केस में हम 100 पॉइंट का स्प्रेड खेलेंगे, ठीक है। व्हेन द विक्स इज लेस देन 60 तो हम 50 पॉइंट का स्प्रेड खेलेंगे। तो डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी कितना है। इफ द वॉलेटिलिटी इज 30 तो उस समय 100 पॉइंट का स्प्रेड खेलना भी रिस्की है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी क्या है। बट हिस्टोरिकली आप देखोगे तो मार्केट की वॉलेटिलिटी 20 से नीचे ही होती है, और 15-16 की वॉलेटिलिटी में ये स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं। हाँ, फिर हम 11, उस समय प्रीमियम मिलता ना ऊपर, क्योंकि जब विक्स ज्यादा है तो ऊपर में प्रीमियम ज्यादा है, तो मैं 150 बेचता। जब विक्स 25 होता तो मैं और 150 पॉइंट ऊपर जाता। करेक्ट, जल्दी जाना भी बेटर। यस। ऑलरेडी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीवरी का डेटा, ठीक है। ये डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट जब आप लॉगिन करेंगे किधर मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं, nscindia.com। जब आप एनएससी की वेबसाइट लॉगिन करेंगे तो आपको ये ओल्डर वर्जन में जाने के लिए पूछेगा। बेसिकली ये तो उनका न्यू वेबसाइट है। यू क्लिक हियर टू गो टू द ओल्डर वर्जन। 1 पॉइंट छोड़ दिया पहले, वो 5 लाख डिफरेंस में 1 not on सर वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीजें पहले उसको कंप्लीट कर लो। हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले कवर कर देता हूँ जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप जब एनएससी में जाओगे तो यहाँ पे लाइव मार्केट में यू हैव इक्विटी स्टॉक्स, ठीक है। आप इक्विटी स्टॉक्स में आप जब जाओगे इस सारे स्टॉक्स का लिस्ट आ जाता है इसमें डेटा का। वैसे आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे हम उसको यूज करते हैं। कोई भी स्टॉक आप बोलो सर, एग्जांपल एनी स्टॉक। अभी ऑटो स्टॉक्स चले हैं, उसको ले। ऑटो, बजाज ऑटो लेता हूं मैं, हीरो मोटो। चलो पहले एक बार बजाज ऑटो, रिसेंटली वी मेड गुड मनी इन बजाज ऑटो। मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बजाज ऑटो एक तो सबके पास पोर्टफोलियो है, आप लोग के पास, ठीक है। कौन से स्टॉक हमें रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए, ये स्टॉक का वॉल्यूम है। सपोज द वॉल्यूम इज 10 लाख एंड डिलीवरी इज 2 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज? 20%। कोई भी स्टॉक जिसकी एवरेज डिलीवरी इज लेस देन 30%, उस स्टॉक को कभी पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। लेस देन 30% डिलीवरी वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ? मनी इज नॉट फ्लोइंग इनटू द स्टॉक, देयर इज ओनली सर्कुलर एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इनटू द स्टॉक। लाइक यस बैंक आप देख लो, उसका एवरेज जो भी वॉल्यूम होता है उसका केवल 8-10% ही डिलीवरी उठता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हो रहा है सारा स्पेकुलेटिव वॉल्यूम हो रहा है, करेक्ट। तो आप क्या करना, अपने पोर्टफोलियो में चेक करना है कि वैसे स्टॉक्स
जिसका डिलीवरी वॉल्यूम 20 लेस देन 20% है उसको तो सबसे पहले बाहर कर दो। क्यों? इनफ्लो ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं वीकली बेसिस पे देखना सर ये डिलीवरी वॉल्यूम या डेली बेसिस? नहीं, इसको हम एवरेज डेली बेसिस पे देते हैं। डेली बेसिस पे इसको हम मतलब एक हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, वहां पे नोट करते हैं। अभी दिखाता हूँ, आप स्टॉक बताना, उसको हम लोग क्रॉस चेक करें। जिसका डिलीवरी वॉल्यूम लेस देन 30% है उसका कभी भी बाय सिग्नल आए तो नहीं लेना चाहिए, वो आप फंस जाओगे उसमें। अब सपोज करो इन्फोसिस है, इसमें आपके चार्ट पे जब सेल आएगा आप शॉर्ट करके देखो फंस जाओगे, बट जब बाय आएगा आप इसमें ट्रेड करके देखो आपको पैसे मिलेंगे। तो लॉजिक इज जिसका एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम इज मोर देन 40% वी ऑलवेज इनिशिएट बाय ट्रेड्स, एंड व्हेन द डिलीवरी वॉल्यूम इज लेस देन 30% वी ओनली इनिशिएट सेल ट्रेड्स, नो बाय ट्रेड्स। लाइक आप ये देखो इन्फोसिस, करेक्ट? इन्फोसिस में दिस इज द एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। ये एनएससी की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको डिलीवरी का डेटा सारा मिलता है। आप 1 साल का भी देख सकते हो, 1 महीने का भी देख सकते हो, सारा डेटा वहां पे अवेलेबल है। आप वो अवेलेबल है, वो डेटा को आप निकाल के आप ये देखो कि उनकी एवरेज डिलीवरी कितनी है, करेक्ट? अब एवरेज डिलीवरी अगर मोर देन 50% है, यानी वो स्टॉक्स आप कभी भी आपके बाय सिग्नल आता है आप ले सकते हो। एवरेज कितना दिन का? एवरेज 30 डेज हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। आप उसको 30-35 डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग पीरियड कितनी है। नॉर्मली वी होल्ड फॉर ओनली 1 वीक, हम 1 वीक की ट्रेडिंग करते हैं तो हम 30 डेज एवरेज यूज करते हैं। अगर आपकी होल्डिंग पीरियड इज से 1 मंथ तो आप उसको लंबा एवरेज यूज कर सकते हो। इन्फोसिस में आप देखो ये कौन सा दिन था जिस दिन डिलीवरी हुई 72% की? 27 अगस्त। इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे लेते हैं? 27 अगस्त को हाई लो प्राइस क्या है? 27 अगस्त का हाई है 794 एंड लो है 781। जो भी डिलीवरी उठी होगी इसी के बीच में उठा होगा या इससे बाहर हुआ होगा? इसके ऊपर जाएगा तो आप क्या बोलोगे? डिलीवरी बाई हुई है। और इसके नीचे अगले दिन क्लोज होगा तो क्या बोलोगे? डिलीवरी किसी ने बेची है, करेक्ट? नाउ अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है, कहा गया 72%, हाई लो नोट कर लिया। अगले दिन 3-3:15 बजे अगर इसकी क्लोजिंग हाई से ऊपर हो रही है तो हमें क्या करना है? हमें बाय करना है या कॉल ऑप्शन लेना है या बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, जो भी आप कर सकते हो। अगले दिन की क्लोजिंग कितनी है? 802 की, यानी हमारा एजम्पशन क्या है? ये डिलीवरी बाय हुई है। उसके बाद आप देखो ये 802, 801, 814, 814, 834, 800, मतलब आपको प्रॉफिट देके ये निकलता नहीं निकलता? ठीक है। अब और कोई नेक्स्ट एग्जांपल आप बताओ। आईटीसी जो है डिलीवरी परसेंटेज वेरी हाई बट इट इज डाउन 30%। मैं अभी चेक करता हूँ सर आईटीसी में क्या हो रहा है। सर इसमें स्टॉप लॉस हम लो का रखते हैं, और अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो 2-3% से ज्यादा हिम्मत नहीं होती रखने की फ्यूचर में। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो 2-3% से ज्यादा नॉर्मली अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके कैरी कर लो। 3%, 4% में हम प्रॉफिट कर लेते हैं, क्योंकि अगर 4% मेरे को फ्यूचर में आ रहा है तो 20-25 हजार रुपए एक लॉट में आते हैं, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेड्स मिलते रहते हैं ना, आपको दूसरी जगह ट्रेड मिल जाएगा, करेक्ट? सर व्हाट आई हैव डन इज, ये तो अभी का फिगर है ना, मैं तो इस दिन का देख रहा हूँ कि फिगर क्या, मेरे को देखना है कि जो मेरी एवरेज है इससे कम से कम 10% ऊपर होना चाहिए। एवरेज इट शुड बी एटलीस्ट 10% हायर देन द एवरेज, प्लस 10 या प्लस 10, मतलब सपोज एवरेज इज 60, सो प्लस 10 इज 70, सो अगर उससे ज्यादा आएगा देन आई ओनली आई विल इनिशिएट द ट्रेड। कहां सर? हाँ 81 का लो है, 81 का लो है। अगले दिन मुझे क्लोजिंग देखनी है 3:15 बजे के आसपास, कि अगर ये लो के नीचे क्लोज हो रहा है तो मुझे सेल करना है, बट अगर डिलीवरी इसकी ज्यादा है तो मैं सेल ट्रेड नहीं करूंगा। 3:15 के आसपास। बट मुझे ध्यान ये रखना है कि अगर इसकी अच्छी डिलीवरी चलती है तो मुझे सेल वाला ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए आईटीसी में मैं आता हूं सर। आईटीसी में 25% की एवरेज डिलीवरी अभी चल रही है करंट में, तो इसमें बाय सिग्नल पे मैं बाय नहीं करूंगा, और सेल सिग्नल मिलेगा तो आई विल सेल। ठीक है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे ये कौन सा खुल गया?
ये ऑर्थो की दिक्कत आ रहा है। अच्छा एसी से एक बार एनालाइज ही कर लेते हैं बार बार, ठीक है। अब ACC देखिए इसकी क्या है 43% डिलीवरी यहाँ पे आई, ठीक है। एवरेज 25 है, 25 प्लस 10 35, 35 से ऊपर 43 है, यानी ये हमारे क्राइटेरिया में फिट हो। अब इसका हाई लो क्या है इस दिन का 1440 और 1503। 1440 की कल क्लोजिंग कितनी है 1440 के आसपास की है, क्लोजिंग 1440 की है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली उसी लेवल पे क्लोज हुआ है, तो इनिशिएट नहीं होगा जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, ठीक है। हाई के आसपास हुआ बट ये पॉजिटिव है, हाई के आसपास हुआ ना। अब अगले दिन देखो आप 1461, 1463, 1472, 1485, बट मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि इसकी एवरेज डिलीवरी लेस देन 25%। और कोई एग्जांपल ITC देखते हैं, ITC देख लिया। रिसेंट में एक बहुत अच्छा सिग्नल आया हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, देखे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है। ये देखो सर बालकृष्ण इंडस्ट्री में 2 दिन पहले 25% की एवरेज होती थी, 25 की एवरेज होती थी, ये 52 हुआ अचानक से, क्योंकि इतना ज्यादा वाइड डिफरेंस डबल हो गया, यानी कुछ होने वाला है। अब आप देखो इसकी क्लोजिंग थी 736 थी, अगले दिन हाई क्लोजिंग हुई और ये डेटा 12 का, ये 13 तारीख को आप देखना ये स्टॉक कम से कम 4%, फ्राइडे को 4% और ऊपर बंद हुआ है। तो आप देखो आपको 736 से 770 रुपए तक का मूव मिल गया। नहीं मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, इसके ऊपर ये जो स्टॉक्स हैं जिसकी डिलीवरी लेस देन 25 है, ये स्पेकुलेटिव है, आपको कभी भी धोखा दे सकती है। इसके सेल सिग्नल्स पे हम ट्रेड करेंगे, बाय इस पे नहीं करेंगे, बट आप ऑब्जर्वेशन के लिए ये रख सकते हो कि अगर ऐसा डेटा बन रहा है तो मुझे शॉर्ट नहीं, मतलब बाय शॉर्ट के सिग्नल आएंगे तो करना है। बट अगर आपकी सपोज शॉर्ट पोजीशन है, सपोज यू हैव अ शॉर्ट पोजीशन और इस तरीके का डेटा बन गया, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट को कवर कर लोगे, ठीक है। या फिर अगर आप चार्ट देख रहे हो और चार्ट में आपको बाय सिग्नल आ रहा है और आपको मन है कि मुझे इस पे ट्रेड करना ही है और आपका बाय सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो आप डेटा से कंफर्म कर लो ना कि जो मेरा बाय सिग्नल आ रहा है उसमें डेटा की वैलिडिटी है कि नहीं है, ठीक है। ये मैं लॉजिक दे रहा हूं कि नहीं ट्रेड करना है 25 से नीचे, बट ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेड नहीं करोगे भाई। मार्केट में अगर आप 40 से ऊपर वाले वॉल्यूम में करोगे तो आपके पास केवल 30-40 स्टॉक्स ही बचेंगे, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 40 स्टॉक में ट्रेड करोगे। तो अगर आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और आपके चार्ट्स पे सिग्नल आ रहा है तो आप उसको कंफर्म कर लो डेटा से कि डेटा में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, करेक्ट, ठीक है। नहीं हम इसके बेसिस पे ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं, यस। बट अगर हम चार्टिस्ट हैं, हमें चार्ट रीडिंग आती है तो कंफर्म करोगे तो डबल कंफर्मेशन मिलती है। क्योंकि अभी क्या है कि सपोज आप डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट कराने जाते हो किसी डिजीज के लिए, तो वो चार्ट टेस्ट लिख देता है, ठीक है। आप शुगर भी करा लो, विटामिन भी करा लो। तो वैसे मार्केट का अगर स्टॉक का आप टेस्ट कर रहे हो तो चार्टिंग से आप एक कर लिया, ठीक है, दूसरा टेस्ट उसका डिलीवरी से कर लिया, तीसरा उसका ऑप्शन का डेटा से कर लो, जो भी बताऊंगा। तो तीनों में डेटा में कंफर्मेशन आ गया तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ भाई ये ट्रेड मेरा बेटर है, करेक्ट। तो वो कंफर्मेशन के लिए आप डेटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी 543 हो गया, मुझे 6:15 छोड़ना है स्टेज। अब देखिए ये टेबल हमारा, जैसे हमने निफ्टी का टेबल देखा उसी तरीके से ये हिंडाल्को का टेबल है, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूं कि हिंडाल्को की मुझे कॉल ऑप्शन लेनी है कि नहीं लेनी है। आप लोग ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें क्या क्या दिक्कत आती है ट्रेड करने में, कॉल ऑप्शन लेना चाहिए या पुट ऑप्शन लेना चाहिए, मार्केट गिर रहा है या मार्केट अगर बढ़ रहा है तो कौन सा स्टॉक हम पकड़े, कौन सा सेक्टर पकड़े, राइट। सपोज आपने अगर हिंडाल्को फॉर एग्जांपल अगर आप हिंडाल्को बाय करना चाह रहे हो तो ये डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या डिफरेंस है, पब्लिक किधर बैठी है, कितना डिफरेंस आ गया। आप ये देखो ये है 2,41,000 और ये देखो 16 लाख, डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। इसका मतलब हिंडाल्को इंट्राडे में नीचे आता है और आपके चार्ट पे ऊपर से जाके नीचे सपोर्ट पे आप फटाक से ले लो भाई। कोई स्टॉक वन वे तो चलता नहीं, सपोज वो 4 रुपए बढ़ा, 2 रुपए नीचे आया, आप ये डेटा देख रहे हो तो क्या करोगे, बाय करोगे। दूसरा आदमी डर के क्या करेगा, बाय तो बेच देगा कि 2 रुपए नीचे आके भाग जाओ,
बट ये डेटा रहेगा तो आप क्या करोगे कि अच्छा ये ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट पे आया है, ऑपरेटर का पैसा पुट में लगा हुआ है, यानी ये बाउंस कर जाएगा, करेक्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अभी तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बट कई बार ऐसा होगा ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। उस केस में स्टॉक्स में 20 पैसे की पुट में 6 लाख शेयर है, 20 पैसे की पुट में 6 लाख शेयर है, पूरे लाख में 20 पैसे की पुट में 66,000 है, 66,000 नहीं, मैक्सिमम हुआ है। आप देखो 200 पे है ना, ये देखो 200 की पुट में कितना है, 5 लाख। इससे तो यही 200 से अप नहीं जाएगा। नहीं, पुट में अगर ओआई है तो 200 के नीचे नहीं जाएगा, 200 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अब 200 की पुट सपोज मैं बेचूं, आप देखो 195 में कितना, 12 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, 12 लाख शेयर को बेचने में मार्जिन मेरा कितना लगेगा, 1 करोड़ लग जाएगा। 1 करोड़ में क्या होगा, 12 लाख कई करोड़ लग जाएगा सर, कई करोड़। और 12 लाख मुझे अगर पुट खरीदनी है तो 25 लाख में काम हो जाएगा, 2 रुपए 30 पैसे की है, ठीक है, 2 रुपए 30 पैसे का प्रीमियम है, 12 लाख खरीदने में 25 लाख लगेगा और 12 लाख बेचने में मुझे 500 करोड़ रुपया लगेंगे। तो किसका स्टेक ज्यादा चाहेगा कि नहीं बचाएगा ऑपरेटर, ठीक है। तो जब वो बचाएगा तो उसको देख के हम कॉल खेल लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए पैसे नहीं है, तो हम उसको देख के कॉल खरीद लेंगे। तो बेसिकली इस मॉडल का यूज आप टेक्निकल के साथ कंबाइन करो। आप केवल इसको देख के ट्रेड करोगे तो हो सकता है कई बार एक्यूरेसी आपको मिले ना मिले, बट सपोज आपको किसी स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है और आपको इंटर करना है, आप जस्ट कंफर्म कर लो डेटा से, और ये दिस ऑप्शन चेक डेटा ये आप इंट्राडे भी यूज कर सकते हो और पोजिशनल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि चार्ट्स में आपको ब्रेकआउट मिला, अब उसकी टाइमिंग देखनी है कि ऑप्शन से सेम डेटा कंफर्मेशन है कि नहीं। कई बार क्या होता है चार्ट में ब्रेकआउट होता है, वो उल्टा मार देता है, जैसे आप घुसे, ठीक है, चार्ट्स में जैसे ब्रेकआउट पे आपने इंटर किया, क्या होगा, कई बार वो रिवर्स कर देता है। अगर ये डेटा का कंफर्मेशन होगा तो वो जल्दी से रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है, तो आपकी ट्रेड एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, कई बार तो इसमें क्या होगा, ये डेटा रहेगा तो नीचे आएगा तो आप स्टॉप लॉस को इसके हिसाब से रख सकते हो। सपोज आपने बाय किया 200 पे और आपको पता है कि 195 पे ऑपरेटर बैठा है, तो आप कम से कम 195 तक बैठे हो, आपको 195 आपको लॉजिकल लेवल मिल रहा है जहां पे ऑपरेटर बैठा है। सर ये डेटा देख के यस बैंक में काम करते हैं, इस डेटा के बेस पे यस बैंक में काम होता है। यस बैंक एक बार चेक कर लेते हैं, देखो यस बैंक डिलीवरी रेट आपने बना दिया, राइट, इस डेटा के बेस पे जब सेल सिग्नल आए यस बैंक में कर सकते हैं, बाय सिग्नल में नहीं कर सकते, बाय सिग्नल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी डिलीवरी इज ओनली 10%। डिलीवरी कम होने का मतलब क्या है सर, पैसा ही नहीं लग रहा है ना उसमें, नहीं बोलता ये गिरेगा और आपका चार्ट भी बोलता है और गिरेगा, तो कंफर्मेशन मिल गई ना, ठोक दो, करेक्ट। 25 करोड़। अब हम एक बार यस बैंक में आते हैं जी। इसमें हम टोटल देखेंगे और इसमें साइजेबल डिफरेंस कम से कम 1:2 होना चाहिए, मतलब डबल का डिफरेंस होना चाहिए। स्टॉक्स में जब तक डबल का डिफरेंस नहीं हो तब तक ट्रेड नहीं करना। टोटल सपोज करो यहाँ पे 7 है और ये 2 है, तो ये डबल का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब अगर ये 7 है तो ये 14 होना चाहिए। अगर डबल का डिफरेंस है तो ये ऑप्शन ट्रेड नहीं, इसमें हम टोटल देख रहे हैं ना, इसमें भी टोटल ही देख रहे हैं। अब देखो सर यस बैंक 11% और 8% डिलीवरी हो रही है, 6% डिलीवरी हो रही है, ये ऊपर जो भी बढ़ के आया है या पता नहीं गिर के आया है, ये डिलीवरी नहीं है, इसमें 5% की डिलीवरी होती है, मतलब 100 शेयर में 5 शेयर डिलीवरी उठते हैं, तो इसमें पैसे मिलेंगे बाई करके। ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ, ये डेटा एनएससी की वेबसाइट में आपको ऑप्शन चेन में भी मिल जाएगी। ऑप्शन में क्या होगा, हाँ देखो ऑप्शन में, या आप बताओ ये कॉल कितनी है, 38 लाख, पुट कितनी है, 3 लाख नेगेटिव। ये बेस्ट सिनेरियो है टू शॉर्ट, इसको मैं बेचूंगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव भाई। अच्छा आप ऐसे समझो, पब्लिक का पैसा किधर लगा हुआ है, कॉल में या पुट में, ऑपरेटर का पैसा किधर लगा हुआ है, अच्छा ये पब्लिक का पैसा कॉल में लग गया, तो ये ऊपर जाएगा तो किसको फायदा होगा और नुकसान किसको होगा, तो ऑपरेटर क्या करेगा, गिरा देगा, समझ में आ गया।
माइनस कैसे हो गया ये माइनस होने का मतलब कि पब्लिक को पुट में इंटरेस्ट ही नहीं है, जीरो इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट, और कॉल में खूब इंटरेस्ट है। तो कॉल सर ये तो बेस्ट सिनेरियो सर, इसमें मैं एट द मनी लूंगा, एट द मनी, एट द बेस्ट। क्योंकि देखिए यस बैंक में मेरा डिलीवरी मॉडल बोलता है कि मुझे बाय ट्रेड लेना ही नहीं, ठीक है, तो बाय ट्रेड करना नहीं है, जब बाउंस करे उसमें बाय करना नहीं है। सेल कब करना है? जब मुझे ऐसा सिनेरियो मिल जाए कि पब्लिक ओवर बुलिश है, वो कॉल में बैठ गई, पुट में माइनस है, तो इससे बढ़िया ट्रेड नहीं है। करेक्ट, इंट्राडे में आपको ये पैसे देके जाएगा। प्लस ये डिफरेंस ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आया होगा, सुबह से जब आप ऑब्जर्व करते रहोगे तो ये 5 लाख हुआ होगा, ये 2 लाख हुआ होगा, ये 20 लाख हुआ होगा, ये माइनस हुआ होगा। तो आपको बाकी चार्ट तो आपके सामने है, चार्ट में कैंडल गिर रही है, ठीक है, टीवी पे अनिल सिंघवी जी बोल रहे हैं यस बैंक गिर रहा है, जो भी आपको हाईलाइट्स मिल रही है आप डेटा से कंफर्म करके ट्रेड कर सकते हैं। नहीं आए तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो, टारगेट और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नॉर्मली हम बाइंग प्राइस का 50% रखते हैं ऑप्शन, ठीक है, 1.5 रुपया, और टारगेट आपके ऊपर है, आप 2 रुपये में बुक कर लो, डबल पे बुक कर लो, क्योंकि इंट्राडे हम 1:1 खेलते हैं, 1:, क्योंकि क्या है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर मेरी ज्यादा है तो हम प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, नेक्स्ट में घुस जाते हैं, प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। एक मिनट यार, एवरीवन प्लीज यार, आधे घंटे में खत्म हो रहा है और गाइस पुटिंग सो मच है, बट सुन लो यार, हम तो सुनो यार सुनिए, हमें सुनने दो, सुनो बातें नहीं पटर यार, तो दिस इज लाइक थोड़ा डेकोरम मेंटेन होना चाहिए यार, ऐसा मत इज पुटिंग सो मच एफर्ट हो रही है तो और मार्केट तेजी से बढ़ेगा। अब क्या हुआ था फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रही थी पूरे दिन, फ्लैट टू नेगेटिव। ये वैल्यू क्या थी? ओनली -5500 थी सुबह तक, मतलब 1 बजे तक ये -5500 थी, यानी कि मार्केट 25 पॉइंट डाउन है और ये वैल्यू -5500 से बढ़ ही नहीं रही है। इसका मतलब कोई बेच ही नहीं रहा है मार्केट। 5500 शेयर क्वांटिटी, यानी बड़े ऑर्डर एक ही आए हैं, हम इसमें फिल्टर क्या कर रहे हैं? 5000 का ऑर्डर फिल्टर कर रहे हैं, करेक्ट। मार्केट सपोज करो 30 पॉइंट डाउन है और ये वैल्यू -10,000 है ओनली, इसका मतलब क्या? बाजार की सेलिंग में दम ही नहीं है, लो वॉल्यूम नहीं, बड़े प्लेयर का वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, छोटे प्लेयर बेच के बैठे होंगे, बड़े प्लेयर का वॉल्यूम नहीं है, इसका तो मार्केट कभी बाउंस कर सकता है नीचे की तरफ। तो क्या करना है? वी हैव टू कंबाइन दिस डेटा एंड दिस फ्लो डेटा टुगेदर। आप इसके ऊपर नेक्स्ट 1-1.5 महीने ट्रेड करके देखो, एवरीडे यू विल मेक सम मनी। कौन से कॉलम में आएगा ये सर जब आप होम पेज लॉग इन करेंगे तो होम पेज पे ही मार्केट फ्लो आ रहा है और उसके नीचे ऑप्शन फ्लो आ रहा है। हाँ, ये ट्रेड लेते समय आपको ये देखना है कि डिफरेंस आपका 5 लाख है प्लस ये वैल्यू 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। और अपना जो ब्रेकआउट चल रहा है उसके हिसाब से वो आप चार्ट देखते हो, चार्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा इससे कि जो आप ब्रेकआउट देख रहे हो वो वैलिड है। ये सिर्फ निफ्टी के लिए देखना है? हाँ, ये निफ्टी और इधर बैंक निफ्टी है। ये बैंक निफ्टी में 3,30,000 पॉजिटिव है। फ्राइडे को क्या हो रहा था? ये 5500 माइनस थी और ये 1 लाख प्लस था जब मार्केट 28 पॉइंट डाउन थी तब। तो हम लोग सरप्राइज थे कि बैंक निफ्टी 1 लाख प्लस है और निफ्टी 5500 माइनस है, इसका मतलब somebody is buying बैंक निफ्टी, कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में डेटा इंप्रूव होना चालू हुआ, वी स्टार्टेड बाइंग कॉल ऑप्शंस, करेक्ट। तो ये डेटा जब आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये आइडिया लगने लग जाएगा। बैंक निफ्टी में कितना? 50,000 से ऊपर? नहीं, बैंक निफ्टी में 50,000 से ऊपर और निफ्टी में 1 लाख से ऊपर। ये जब पॉजिटिव रहेगा तो अपने आप ग्रीन आ जाएगा और नेगेटिव रहेगा तो अपने आप रेड हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लो डेटा है, ये ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स में मिलता है, बट हम लोगों ने कैलकुलेट करके अपने प्लेटफॉर्म पे बना रखा है। हाँ, कॉल ऑप्शन भी ऐड करूंगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर कोई सेल करेगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर आप 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट का काम हो रहा है तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेगी। तो ये केवल बल्क ऑर्डर, निफ्टी में कोई बल्क ऑर्डर आता है उसको कैच करता है। माइनस साइड, अगर somebody हिटिंग द ट्रेड, तो जैसे ही वो हिट करेगा डाउन टिक लगेगी, वो 5000 से ऊपर का डाउन टिक होगा तो उसको वैल्यू माइनस कर देगा। अब फ्राइडे को क्या हो रहा है? देखो, पुटों में सेलिंग थी, कॉल्स में बाइंग थी। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में फ्लो पॉजिटिव था तो मार्केट ऊपर की तरफ। हाँ,
शॉर्ट जाने के लिए -1 लाख और -50,000, बट कंफर्मेशन शुड बी फ्रॉम दिस डेटा ओनली, बिकॉज दोनों डेटा को आप कंबाइन करोगे तभी एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो पर्सन है ना, आईडी आपकी फिनब्रिज होगी और पासवर्ड 1 2 3 होगा, लॉगिन हो जाएगा। आप इसको क्या करो, 1 महीने आप सीखो इससे, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फिनब्रिज को कांटेक्ट करना, हम 1 महीने और एक्सटेंड कर देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर सेल करना नहीं है, वी आर एसएमसी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप इससे सीखो, फिर जब आप सीख लोगे तो आप क्लोज कर देना सॉफ्टवेयर, और फिर आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए तो देन यू हैव टू बिकम अ एसएमसी कस्टमर। बट फॉर फिनब्रिज पार्टिसिपेंट्स 1 महीने हम आपको अभी दे रहे हैं, फिर आपको लगे तो 1 महीने और हम एक्सटेंड कर देंगे। कोई ऐसा मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव इससे प्रॉफिट बनाना नहीं। आपको व्हाट्सएप आ जाएगा सर, नहीं बाय डिफॉल्ट मैं करवा दूंगा, व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं, वो मैं कर दूंगा फिनब्रिज एंड 1 2 3 बाय डिफॉल्ट आपका कल शाम से एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव नहीं होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट कर। हाँ, फिनब्रिज छोटे में सारा और यस। अरे बड़ा में नहीं होगा तो छोटा करके देख लेना। रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। एनी आइडिया व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग? इसमें वर्ड क्या आ रहा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोज दिस इज द रेस कोर्स, करेक्ट? तो मैं इसमें बोलूँ कि आपको कौन से घोड़े पे पैसे लगाने हैं, तो कैसे आप कौन सा घोड़ा बताओ? आगे बहुत इजी है बोलना, ठीक है। इस पे या इस पे लगाओगे, ठीक है। अब आप इसको मेजर कैसे कर रहे हो? इन दोनों का डिस्टेंस देखो भाई, जिसका डिस्टेंस सपोज करो अभी ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस देख के आप बता रहे हो कि इसमें पैसा लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में भी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ? दो स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट का जो स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है वो स्टॉक ज्यादा तेजी से भागेगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स चल रहे हैं, तो मेटल्स में हिंडाल्को भागेगा कि टिस्को भागेगा, ये कैसे पता चलेगा? सपोज करो ये पूरा मेटल सेक्टर है, ठीक है। ये सारे मेटल है, जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, सेल है, करेक्ट? ये सारे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे हिंडाल्को कौन सा है और इसमें टाटा स्टील कौन सा है? आइडिया लग सकता है? तो लीडर कौन सा है? ये हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, या जिंदल स्टील है, सेल है? टाटा स्टील है। और एनी गेस? जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा है, एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम जिसमें ज्यादा है। नहीं, ये मैं डिलीवरी वॉल्यूम पे नहीं आ रहा हूँ, मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो 615, ठीक है, ठीक है। अब सपोज मैं आपको पूछूं ये सेक्टर कौन सा है? इसमें मेटल है, फार्मा है, आईटी है, बैंकिंग है। कौन सा मेटल है, कौन सा फार्मा, कौन सा आईटी है? एनी आइडिया? सबसे पहले आईटी चल रहा है और पीछे मेटल। आप देखते हैं ये कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग के फॉर्मूले को यहां लगा दिया, करेक्ट? अब रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर्मूला के हिसाब से ये घोड़े मेरे आ रहे हैं 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट डेली और वीकली, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं ये टाइम फ्रेम को देखता हूं खाली। रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग गूगल आप करोगे तो इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आप इसको एक्सेल में प्लॉट कर सकते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो, मेटास्टॉक, फैल्कन, रिलायबल, रॉयटर, ब्लूमबर्ग, हर जगह रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग के फॉर्मूलेज अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने बोला आईटी, किसी ने बोला टाटा स्टील। अब इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आ रहा है? मेटल्स। और वीकेस्ट कौन सा है? एफएमसीजी एंड फार्मा। अगर निफ्टी में तेजी का सिग्नल है, ठीक है, तो मैं कौन सा सेक्टर पकड़ूंगा? मेटल। और निफ्टी में मंदी का सिग्नल है तो मैं कौन सा सेक्टर बेचूंगा? एफएमसीजी और फार्मा। अब सपोज तेजी है तो मेटल पकड़ा। मेटल में कौन सा स्टॉक? लीडर कौन सा है? टाटा स्टील। इन्होंने बोला टाटा स्टील। लेट्स सी मेटल। मेटल ऑलरेडी कम, सो प्लीज। अच्छा सर, वो डेटा से ही देखना पड़ेगा सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तीनों का सम कितना है? यानी जो भी लेवल है इससे 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, बस इतने का सम आप देख लो। इन दोनों का सम अगर सपोज करो, और फंडा फिर
विथ सेम फंडा। अगर सपोज करो इन दोनों का सम कितना है अभी 5 3 8 9 लाख है, ठीक है। और इधर कितना है, इधर है अभी लॉबी, अगर लॉबी में हम लोग रहेंगे ना तो लॉबी में लगाइएगा फिर 10 मिनट के लिए। एक्सपायरी वाले दिन बाजार ओवरऑल ऊपर बंद हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आंसर the most exciting session. फ्राइडे का डेटा, ये फ्राइडे का है ना, लास्ट